audible? आवाज आ रही है? Hello? Yes, ठीक है. Miss Humaira, can you hear us? Yes. जा रही होगी ना? बस ठीक. Thank you, thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जहाँ कराची हमें उर्दू बोलनी इंग्लिश बोलनी? It's a business writing course, so we should communicate in English. Hi guys, assalamu alaikum. This is Mohammed Tara Salim, and those students who were present in orientation, they are already aware of Mr. Mohammed Tara Salim. I have. It's important to know the teacher, right? Teacher के बारे में जानना ज़रूरी है. थोड़ा सा जान लेते हैं. So my name, myself, Mohammed Tala Salim. I have been in the field of teaching for about more than 15 years, and teaching CA Chartered Accountancy student for about 11 years now, and I have taught business communication, business writing, presentation communication skills courses, presentation and personal effectiveness courses. Yeah, Miss is saying you are the orientation guy. जी मैं ही था वो वाला guy जो ओरिएंटेशन में था, जिसने तिलावत भी की थी, याद है? तो बल्कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So Mohammed Tara Salim, I have taught in different universities of Karachi. I told you the other day as well. I've taught at Zebist, Ikra, Behriya, NAD, you name it. Alhamdulillah, I've been there in different universities of the city Karachi. काफ़ी है. English, Urdu? English, yeah. Okay guys, so online wale, they are listening. Wale to bolne nahi chahiye. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Okay, so guys, English board, right? So Mr. Mohammed Tala Salim, I've taught. I have already talked about it, right? Yeah. So I've already discussed about different universities, teaching in different universities. Alhamdulillah, I've conducted training session for English language teachers. I have presented in different conferences. I think it is enough, right? Enough? Sisters? Okay, trying to understand this. The first day, so not only people from Karachi, but from different parts of the cities of Pakistan, they are attending this lecture. This lecture is about, actually it's the orientation of the course BWCS, right? So what is BWCS? It's a business writing. It's a combination of two courses, business writing and communication skills. So we call it business writing and communication skills course, right? Hello? 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 Hello guys, online wale, online guys, please use the chat box to talk to us. Okay, stay tuned, stay connected. Hello, how to open it? Bismillahirrahmanirrahim. Right. Okay. So business writing course, what is going to happen in this course? It's all about writings. Writing means business letters. Writing means business reports. Writing means business essays. Writing means business memorandum. Okay, so you have to write different types of articles, different types of summary. You have to write a précis. You have to have good knowledge of the vocabulary of English language. There are metaphors, similes, there are idioms. Okay, I'll show you the book as well. If we see different chapters of the book, we have writing process. Okay, unit number 1 is writing process. You are seeing unit number 2, that is chapter number 2, business messages and correspondence. Okay, and then you have business reports. Then chapter number 4 is vocabulary and phrases, and then you have argumentative writing. Actually, the article writing which you are going to do in the exam situation, that is based on argument. Okay, so we'll talk about basic writing skills, basic paragraph writing, brainstorming strategies, how to begin your writing, how to start your writing, how to initiate writing. Because till now, majority of us have not written paragraphs, have not written articles. But in the real scenario, in the exam scenario, you have to write articles yourself, right? Have you written articles yourself before? Have you written paragraphs before? Okay, those, how many of you are coming from Cambridge and O-levels background? Okay, and how many of you are coming from intermediate background? So intermediate students, have you written articles before? So very nice, excellent. So now on, inshallah, we have to write articles ourselves. We have to learn
how to brainstorm and how to write articles. मेरी आवाज नहीं आ रही. Hello. अब आएगी. Hello. Ms. Omera, it's a good question. Coming to that as well. थैंक यू अहमद. बाकी अपने अपने सिस्टम्स वगैरह को चेक कर लें. आपके पास स्पीकर सही लगा हुआ है, आवाज़ आ रही है, हेडफोन वगैरह आपका ठीक है. ओके, तो then we have reading skills test as well. ICAP is going to test our reading skills. We should be able to read in a speed, 5 minutes time bound reading passage would appear, and you should be able to read it, comprehend it, understand it, so that you may be able to respond to the questions, 5 questions, which will be given to you, having each question would be of 2 marks. Okay, so I'll tell you about that as well. Let's move on. Hello. Okay, so the first unit we have is here. It's about the unit, the writing process. How do we write? What are the planning stages? How do we generate ideas? You are able to see this, right? Idea generation. Okay, you can generate ideas. Hello. Okay. Okay, so there are different processes here. Business messages and correspondence is the unit number 2, in which you're going to learn about letters, memorandums, okay, and report writing is the unit number 3. Then you have vocabulary and phrases. You have to learn a lot of vocabulary. This is unit number 4, if we see. Hello. You are seeing verb and noun and adjective and adverbs. You should be able to create any adjective or any adverb or any noun from the category of verb. अगर आपको verb दिया हुआ है तो आपको उसमें से noun, adjective या adverb बनाना आना चाहिए. For example, if you are having accept, the word accept, so you if they ask you to make adjective, you should be able to make it acceptable. Okay, or if they ask you to make adverb, you should be able to make acceptably, right? Then we have, for example, other words. There are so many words. You can see the first row is, first column is verb, second column noun, then adjective, and then adverb. Okay, so there are parts of speeches you need to know about them so that you should be able to do them later. Hello. Yeah, this is a problem. Okay. Hello. Okay, and then there are other words. You can see it's a long chapter. यार ये तो चलता ही नहीं. Hello. Okay. Wait. Okay. उससे मज़ा नहीं आ रहा था ना. Hello. There. Acha, if you have any question, please feel free and continue asking questions, and we will be, sharing our thoughts about that topic. Okay, moving on, unit wise. Unit number 4 we were discussing about. So you have different vocabularies, right? And then we have prefixes. You should be able to make different words. For example, a word, absolute, abstract. Okay, there are words with circum. Okay, words with comparison, competition. Okay, there are other words, miss, wrong. So you have to have a good pool, the good knowledge of these words, vocabularies, so that when examiner would ask you synonym, coming to that. Synonym, you should be able to give synonym. If they ask you meaning, you should be able to give the meaning. If they ask you your understanding and comprehension, you should be respond to that. Okay, if they ask you opposite word, you should be respond to writing antonym of the words. Okay, yes sir. It's a complete unit of varieties of vocabulary. Okay.
हमको समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आता. Okay guys, so it's like prefixes are given and you have to add different words. There are vocabularies with these prefixes, adding post, adding re, adding sub, trans, anti, okay, and there are so many words. So you have to learn them. There are suffixes, you can see here, okay, ens, ant, it's the meaning mentioned, one who, account, okay, accountant, and so on. सर तो क्या ये आप हमें पढ़ाएंगे या हमें खुद से याद करना होगा? यस, डू एनीबडी हैज़ दिस क्वेश्चन इन माइंड? ये हम पढ़ाएंगे नहीं, ये आपने खुद से याद करना होगा. सर हम कैसे करेंगे? कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, दिस यूनिट, and you will be able to do it. Otherwise you can make a list of maybe 20 words per day and you will be able to inshallah do them. Okay, there are words synonym. This is very common and very important question in the exam situation. You will definitely have synonyms, at least 5, and you can even have more. So this category, this part, this section, synonyms is very important. For example, the word is abandon and the synonym is leave. Okay, and the word is agile and nimble. So they are lists. Sir, question coming. Hello. सर पेपर इन्हीं में से आएगा? इन्हीं में से आएगा? जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं जरा इन्हीं की प्रिपरेशन. ये मैंने नहीं लिखे हुए कि ICAP ने लिखे हुए. It's just the book, the recommended study text by ICAP. तो हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी. No, not extra. It will definitely be from the content given. और ये कम नहीं है. ये एक बहुत ही तवील. It's a long chapter. And you have to learn them all. And it's, you see, it's by category, A, B, C category, right? In alphabetical order. It's possible to prepare about everything of this section. Students have been doing it for many years. How we do this? You will just go through it. You will read it again and again and again and again and again and again, and you will be able to do it. Okay, and with practice, inshallah, there are question banks given. Practice book is also given by ICAP, and inshallah you'll practice it. Practice makes man perfect. Okay, so copy, imitate, correct, write, corridor hall. And let me also tell you, we have studied in English medium systems. Our matriculation system is also English medium. Our Cambridge system is also English medium. So we already know, if you see, we are already aware of majority of the words. तुम्हें अभी डर इसलिए लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें लग रहा है ओ माय गॉड ये इतना ज़्यादा नहीं है. ये देखो कॉरिडोर, क्या तुम्हें नहीं पता कॉरिडोर क्या होता है? क्या तुम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे? मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हों तुम उसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे. हॉल, करेक्ट, राइट, कॉपी, इमिटेट, कोप, मैनेज. और फिर जब तुम बार बार गो थ्रू करके जा लोगे. अच्छा एक बात ये याद रखो, मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 पर जंप किया हूँ. पेपर पैटर्न पे भी आएंगे, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, ठीक है. लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा घुमाने का है. इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आएगा, ठीक है. तो बात क्या चल रही थी? हाँ, तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा है. इफ़ यू विल हैव गुड पूल ऑफ द वोकेबुलरी. ये दूसरी बात ये कि इसको ये भी ना सोचो कि तुम ये सिर्फ ICAP के लिए कर रहे हो. यू आर डूइंग इट फॉर योर लाइफ. This is a life skill, and people do not have this much vocabulary if they do BBA, if they do MBA. But child accountancy students, they have a good pool of vocabulary, and you will see, you will learn more than 1,000 idioms. Wow! Say, wow! So child accountancy is beyond your thoughts maybe. It's not the intermediate examination. It's not the matriculation examination which you have appeared in. But here you need to spend time. I discussed it about it in the orientation session as well. मैं डरा नहीं रहा. और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स ड्यू कर ले. पहले डर लगता है, इम्तहान के बाद आ गया सर आपने तो बहुत डराया हुआ था, ये तो बहुत आसान था. लेकिन आई एम टेलिंग यू लिटरली दैट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट. ओके, इसलिए बताना पड़ता है. अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, जाके बैठ जाओगे, फिर तो ज़ाहिर है क्या होगा. लेकिन इंशाल्लाह यू कैन डू इट. सिनोनिम्स विद डी यू कैन सी डैम्प, मोइस्ट, dawn, daybreak, right, dawn, sunrise, dawn, daybreak, dawn, and deadly, lethal, and so on. So this is the vocabulary given in chapter number 4. This is chapter number 4, Miss Umaira. Okay, so these words: examine, inspect, accept, apart from, excessive, immoderate, expire, run out, and there are so many words, right? A to Z, yeah, right. I have a question that there are many words that may have any other synonyms which we can write by our own self. So we can write by our own self, or is the words will be given. They will not give you chance. They will not give you space to write or type.
words will be given. The first column, for example, the words, and the other column you have synonyms, and you just have to connect. So you will just say, for example, A for C, B for. Connect the meaning. Yep. Okay, synonyms with R, for example, rank, position, rare, infrequent, and so on. Okay, so these were synonyms, and then we have antonyms. Antonym bole to? Opposite. Okay? So abroad, home. Absence, presence. Except, and so on, right? वो क्या कहा था किसी ने कि सिर्फ आपने घबराना नहीं. सो इतना कोई टेंशन की बात तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको नहीं पता वर्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, फेयर, अनफेयर. हाँ, यू हैव टू स्पेंड टाइम. वंस यू विल स्पेंड टाइम यू विल बी एबल टू डू इट. क्यों मुन्ना भाई एट द कॉर्नर? मिस वेरा विल डिस्कस अबाउट इट. पहले हम बुक को तो एक्सप्लोर कर लें. मैं पहले ही दिन बच्चों को बुक भी एक्सप्लोर करवा देता हूँ, वरना बुक तो देखते ही नहीं लोग. ठीक है, तो होमोनिम्स आर देयर. ओके, excess, way. Homonyms are words, phrases that sounds alike. Meaning will be different but sounds alike. ठीक है, between, among, amount, number, anyone, and so on. Hello. Abbreviations or acronyms. कितनी अच्छी बात है कि हमें कोई एब्रीविएशन आती हो, है ना? कहाँ गई? हेलो. चाहिए यार, इन्होंने तो एब्रीविएशन दी हुई नहीं है. मिल जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी. वो लिस्ट आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे जो चीज़ नहीं मिलेगी. ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, राइट? कलर, फ्लेवर, एंड सो ऑन. Spellings are different and we'll learn about it. Phrases and idioms is very important, very important. Idioms, similes, metaphor, hyperbole, litotes, oxymoron, understatement, irony. These are called, जैसे parts of speech होते हैं ना, these are figure of speech. You must have studied litotes and there are other examples. लेकिन usually ये इतना एग्जाम में आता नहीं है. इसमें से जो ज़्यादा आता है वो है similes and metaphors and idioms. Yes. Okay, similes like as agile as monkey, as blind as a bat, as brave as a lion. Okay, and we'll do this. We'll discuss it and inshallah you will learn it. Idioms, and then we have foreign phrases and so on. And practice material, self-test is given after every unit, and our question bank is also given at the end of, in a separate workbook. जी, मैं अभी असल में सिर्फ आपको ये गो थ्रू करवा रहा हूँ. मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा. सिमिली जो होता है ना, वो ये है कि किसी नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी मैंने किसी इंसान को दे दी. ठीक है, तो ये होता है as hard as a rock. ठीक है, as white as a ghost. तो ये सिमिली होता है कि हम किसी को मुमासलत करते हैं. अब मेरी गाड़ी उर्दू भी आपको समझ नहीं आनी. तशबीह, शाबाश, ये तुमने और अच्छी उर्दू बोल दी जो कि शायद बच्चों को समझ में आ जाए. हेलो. अच्छा, ये सिर्फ यूनिट नंबर 4 ही नहीं था, बल्कि we have annexure as well, which is based on vocabulary. ये आप देख रहे हैं annexure. This is the end part of the book, and there are Oxford 3000 word list. These are very, very, very common words given at the end. You have the book? Hello? You there with us? Are you seeing Oxford 3000 words? These are common words, okay? And inshallah you will be able to do it.
abandon, abandoned, ability, able, about, above. These are very common and generous words of English language जो claim करे कि मुझे अंग्रेजी आती है उसको ये आने चाहिए, right? So I hope you know them. हाँ, इसमें एक चीज जो थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को वो ये है to identify the part of speech. If the word is given against, so you should be able to mention if it is a preposition. Adequate. Yeah. Admit, adopt, agreement, right, and so on. So this is the Oxford's 3,000 word list. Oh my God. And then we have list of idioms and phrases. This is also second part of the enegger. For example, above all. The meanings are different and these are idiomatic phrases and structures. Above board. Everything is as it seems. It has been carried out. We'll discuss them inshallah. Achilles heel, a weakness. So once you will learn, for example, 2 pages per day, you will be able to do it as well. Across the board, applying to all, add insult to injury, making a bad situation worse. After my own heart, said of a person with interest or point of view similar to yours. All and sundry, to include everyone. All ears, I am all ears, sir, don't worry, I'm listening to you. Paying close attention. All in all, everything being taken into account. All the same, notwithstanding. Against the grain, against one's wishes and so on, right? So these are more than 1,000 idioms only. Sure. Hello? You there? तो इंशाल्लाह ये भी हम कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक लेस, और इसमें से आपने बहुत सारे सुने होंगे. मेरा ख्याल है 100 के करीब तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे अगर तुम लोगों ने इंटरमीडिएट तक पढ़ा है. क्या ख्याल है? हेलो यार, मुझे तो ऐसे सुन क्लास तो समझ नहीं आती. ऑनलाइन वालों से दोस्ती करते हैं, फेस टू फेस वाले तो टोने. यार तुम लोग बताओ, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, एनी क्वेश्चन? एंड दिस वोकैबुलरी इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट. घबराना नहीं है, बस ये बात अहम है, ठीक है? बस सही है. कुट्टी बोलते ही नहीं है ये लोग, क्या यार. ऑनलाइन वालों से बात करें, यानी आप ऑनलाइन वाले कैमरे में, ठीक है? ये देखो बोल रहे हैं आप जी. बस सॉरी, मुझे तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है. PDF, I'll provide everything. Extra PDF will be given to you, but you will not even open them. I'll share a lot of material inshallah, don't worry. क्या ख्याल है? इसका मतलब मुझे मुश्किल से सुनाई देता है. अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ये तो इल्ज़ाम है. तो ये अभी तक तो हम डी पे पहुँचे, and you have all these idioms here, and then there are some other words as well. aha, कभी सुना आपने ex ante, ex post, NMSA, etc. सुना होगा ना? Dolce Vita, deja vu. So these are different languages, words taken from different languages in English language. Okay? Caveat. And you will be using them in your law and text language. तुम लोगों ने कल को इंशाल्लाह कैफ लेवल पे या शायद अभी लॉ भी पढ़ोगे और टैक्स भी पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी यूज हो रहे होंगे. जी सर. You just go through them, keep going through, and you can do it. Many कह रहा रट्टे लगाओ, बस keep on going through them, keep on reading them, but you have to spend. देखो तुम्हें और टीचर्स ने शायद तुम्हारी सारी क्लासेस हो गई हैं नहीं. You will be having, अभी तो मैंने सिर्फ vocabulary दिखाया, दूसरा सेक्शन भी दिखाना है. I'm telling you, you would have a proper scheduling of the time to manage and plan your studies. किसी ने बताया अब तक क्या नहीं? शेड्यूलिंग का बताया होगा ना. देखो बहुत अहम ये होता है कि कितने पेपर देने तुमने? 1, 2, 3, 4 and 5, and you have these months available with you, and you have to plan
ठीक है, कि मैंने किस तरह से करना है, पर डे प्लान करूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम अटेंडिंग क्लासेस ऑफ अबाउट 5 hours. फॉर एग्जाम्पल per day you have 5 hour class, your sleeping time for example 6 to 8 hours you will plan, okay, but then other than that you have to give time to each of the subjects. for example मुझे तो सब्जेक्ट भी याद नहीं होते. अकाउंट्स है फॉर एग्जाम्पल, IT है फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, या उसको तुम BWCS बोलते हो, आई मीन क्या बोलते हो, हाँ QT या QM बोलते हो. तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं तुमने उसको घंटा घंटा का टाइम देना है. अगर कोई प्लान इस तरह करता है कि दैट टुडे आई विल बी सिटिंग फॉर 6 hours फॉर QT, तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा. यू शुड स्पेंड फॉर एग्जाम्पल 1.5 hour or 2 hours टू QT, फॉर एग्जाम्पल half hour to 1 hour फॉर BWCS, half hour or 1 hour for accounting. so you have to manage your time. ये अपने अपने हिसाब से होगा, मैं नहीं कह रहा किसको कितना देना है, लेकिन you have to give time to each of the subjects. ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि 5 सब्जेक्ट है तो तुम कह रहे हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई विल बी डूइंग 3 and the other days I'll be doing the other 2 for example. तो वो तुमने अपना प्लान बनाना है, but you have to spend time for every subject. किसी एक सब्जेक्ट को भी निगलेक्ट करोगे तो वो निगलेक्ट हो जाएगा. तुमने किसी को कह दिया कि आसान है ये मैं कर लूंगा, ये मेरे लिए इंग्लिश है, मेरे लिए अकाउंटिंग है, मेरे लिए IT बहुत आसान है, बट वही जाके फंसता है. जिसको तुमने आसान समझा होता है वही जाके वहाँ फेल हो जाता है. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट एंड यू कैन डू इट. अगर कर सकते हो तभी आके अपने दिए, वरना नहीं देते ना. तो इंशाल्लाह, और ये सारे वर्ड्स बाय द एंड यू विल सी दैट यू नो देम. कहीं ना कहीं तुमने गो थ्रू किया है किसी बुक में, किसी पढ़ते हुए, कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव हर्ड देम एंड यू कैन डू इट. ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा. For example, if someone is willing to give attempt of September, so it's possible. They can do it with Tala Salim, inshallah they can do it. ठीक है, stay connected and keep asking. WhatsApp पे भी हम अवेलेबल होते हैं, और keep writing and practicing में और भी बातें आपको बताता हूँ इंशाल्लाह. So I've only talked about the vocabulary part yet. That is unit number 4. Hello जी, बिजनेस किस सब्जेक्ट की वजह से एग्जाम्प्ट है? मिस नूर फातिमा, ये बहुत सारी बातें मुझे नहीं आती हैं. ये आप मैनेजमेंट से पूछें या हमारे सर हुदैर इंशाल्लाह आपको बता देंगे. अच्छा, ये तो आपस की चैट चल रही है यार, ये तो नहीं करो ना जी. मुस्तफ़ा, यू कैन कवर इट एंड यू कैन गिव इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, डोंट वरी. अच्छा, ये तो दूसरी बातें आ गई. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. हेलो, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1, वी हैव चैप्टर नंबर 1. हेलो, and we plan how to brainstorm, how to start our writing. It's a question of about 30 marks, for which 10 marks are for planning. So it guides you about the planning part. Hello, yaar chalo yaar jaldi karo. The unit number is number 1 and it's about planning, idea generation, drafting or writing. Writing, drafting, planning and reviewing. ऐसा नहीं है कि आपने पेन पकड़ा और लिखना शुरू कर दिया. Right? You have the laptop and you start typing. It's not the case. Actually, you have to plan first. You will plan. If I'm writing a persuasive letter, I'm writing to motivate someone, to encourage someone to do something, or to buy some product, you know. So that is persuasive strategy. अगर मैं कह रहा हूँ that I have to give the bad news, the style, the language, the format will be different. If I have to argue, if I have to debate, I have to give my own stance. The style and the language and the format and the planning will be different. तो हमें हर चीज़ के लिए एजेंडा प्लान करना है. अब यानी कि हम बड़े हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आ गए. नाउ वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू सी व्हाट एंड हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज एंड डू ऑल दीज थिंग्स. राइटिंग और ड्राफ्टिंग, वंस यू हैव प्लान्ड दैट आई एम गोइंग टू राइट अ परसुएसिव लेटर, बैड न्यूज़ मैसेज, देन वी हैव टू राइट. एंड आफ्टर राइटिंग हम लोग क्या करते हैं, लिखा और व्हाट्सएप पे ठक. ऐसा नहीं करना.
Now we have to take a pause and we have to review and revise and improve the language. राइट हमें उस लैंग्वेज को इम्प्रूव भी करना है, रिवाइज भी करना है, रिव्यू भी करना है. तो इस तरह जाके हमारा पूरा राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है. नंबर 1 इज प्लानिंग एंड देन वी हैव ड्राफ्टिंग एंड देन वी हैव रिव्यूइंग. सो दिस पार्ट. अच्छा, मिस हुमैरा बार बार इंसिस्ट कर रही हैं कि पहले पेपर का पैटर्न बता दें. क्या ऐसा करें? पक्का? यार ये बच्चे तो बड़े सख्त हैं. चले आपके कहने पर आपको हम बता देते हैं. किसी और ने मॉडल पेपर दिखाया है क्या? अवेलेबल भी नहीं है. देखो भाई, चलो पेपर पैटर्न भी देख लो यार, क्या याद करोगे? घबराना नहीं है, मैंने तो पहले कहा था, तुम लोग पहले घबरा गए हो, तो अब देख लो. रीड द पैसेज. नजर नहीं दिया तो मैं बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो देख लेंगे. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. सो द टेक्स्ट विल बी गिवन and the questions will be asked and you have to respond to that question. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, क्लिक 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 करके you are choosing the right answer. According to the author, moneyed individuals who are them. So you will just mention. So text will be given and you have to read it and you have to respond to the questions. Sir, how many marks was that? 10 marks. Then you have identify 8 important key points from the passage. Suggest a suitable title. So it's a reading comprehension task. Usually it is easy, although the language will be little, higher level. But inshallah you'll be able to do it. Okay, so you will mention all these 8 points for 10 marks. There is another question. नजर नहीं आ रहा मिस हुमैरा. Oh my God. I'll share all these documents. अभी एक general idea ले लो. There is another question that is for writing. First question is, now you can say reading task. That was about reading comprehension. Different tasks were there. Question number 2, you have writing task. For writing, 10 marks for your brainstorming strategies and 20 marks for your writing. So here you have one. Can you see that fish kind of thing here? The top one, 2A. So you have to mention causes and effects. So this type of writing is based on cause and effect. What are the causes of some issue? किसी मसले के कुछ मसाइल के कुछ reasons होते हैं causes, और कुछ उनके impacts होते हैं. अगर यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक है तो what are the causes? ठीक है, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ खुदा ना खास्ता, या कोई it's a bottleneck situation. So causes and effects. So then you have another one. So this is called fishbone diagram, cause effect, and the other is called affinity diagram. तो वो हम brainstorming करते हैं. जिस टॉपिक पर हमें लिखना होगा, जिस टॉपिक पर हमें पैराग्राफ राइटिंग करना है, उसी पर हम brainstorming करते हैं for about 10 marks, and you have the choice either go for affinity diagram or fishbone diagram. So you have cause and effect or idea, sub idea, you will mention it. It is for 10 marks, and then you have complete paragraph writing and you will write on the topic. For example, इन्होंने दिया हुआ है, the grading system should not exist to judge a student's abilities. Is it really an unfair way to analyze students' progress? तो इस तरह के topics जो है वो आ सकते हैं, और ये भी आई के अपने खुद ही एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी. एक और टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन द सिटी. So these are the topics, usually based on argument, and inshallah we'll practice them, and with practice you can do it. It's not a big deal. For each word in list A, this is question number 3, match the synonym from list B. So it's synonym given and you have to just match, okay, connect them. For example, for the word task or for word bravery, nimble, and you would have done it and you will be able to do it, okay.
past papers are not available now, but past papers before 2018 are available. It was a time they used to give, but now since it's it's based on online question pool they have, so they are reusing the data, so that's why they do not share it. Okay, and then question number 4 you can see on the screen. It's a scenario based question. आपने अगर O level किया तो directed writing करते थे, so it's just the same. Direction is given and you have to write a letter or a memorandum or a report, right, or an email. You have the choice. I mean not the choice, but you will have one question and you have to do that. ठीक है, अब ये इन्होंने जैसे दिया हुआ है, MH Hotel has received an inquiry from Quick Cure Limited, a multinational company which intends to conduct a workshop for its senior sales executives from November 16, 2021 to November 19, 2021. QCL requires a conference room. एक आपको inquiry आई है and you are responding to that inquiry. So response to inquiry question they have given. Imagine that your name is Zaryab. तो ये पूरा एक सिनेरियो दे देते हैं, उस सिनेरियो पर जो है ना तुम कर लेते हैं. इसमें बहुत अहम जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फॉर्मेट. फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं कि लेटर हेड कैसा होगा और उसके बाद जो है आपका इनसाइड एड्रेस कैसा है, एंड देन यू हैव द डेट एंड रेफरेंस नंबर एंड देन द सब्जेक्ट लाइन. ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, वो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह जब हम एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक को इंशाल्लाह वंस वील कवर एंड यू विल बी एबल टू डू इट. अंदर का कंटेंट सेम होता है. तुम ईमेल लिखोगे तो बॉडी विल बी सेम, तुम लेटर करते हो तो बॉडी विल बी सेम. ओके, लेकिन फॉर्मेट जो है ईमेल का अलग हो जाएगा, मेमोरेंडम लिख रहे हो तो अलग हो जाएगा, लेटर लिख रहे हो तो अलग हो जाएगा. ये फॉर्मेट भी हम इंशाल्लाह विल डिस्कस. ठीक है, कहाँ पर जो है मेमोरेंडम में सिग्नेचर एंडिंग पर नहीं होता, लेटर के अंदर सिग्नेचर एंडिंग पर होता है. तो यहाँ जो मैंने आपको बताना है, आई एम गोइंग टू गाइड यू इंशाल्लाह, बट ऑल प्रैक्टिस एंड रीडिंग एंड राइटिंग इज टू बी डन बाय द स्टूडेंट. तो मैं आपको आज पहले दिन ये बता दूं, ये कहता हूं कि आपने पहले दिन से रीडिंग करनी. आपको CNN पसंद है, BBC पसंद है, जो भी एप्लीकेशन आपके पास है या फेसबुक पे आपने कहीं लाइक किया हुआ, स्टार्ट रीडिंग 1 आर्टिकल एटलीस्ट एवरी डे. और अगर तुम रोज़ाना एक आर्टिकल अच्छे न्यूज़पेपर का पढ़ लेते हो और उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर लेते हो, अगर पहले दिन नहीं समझ में आता, यू विल अंडरस्टैंड इट सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे. कीप ऑन रीडिंग एंड कीप ऑन राइटिंग. एक आर्टिकल पढ़ लेते हो, उसके 2-3 बल्कि AI से भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बट यू हैव टू रीड आर्टिकल. Read 1, 2, 3 article every day and write at least 1 paragraph every day. So what is when do you want to appear? Somebody was asking here. कब appear होना है? आज कौन सा मंथ चल रहा है? आज जून चल रहा है, तो जुलाई एंड अगस्त, यू हैव 2 months. तो अगर 2 months में 60 days तुमने 60 आर्टिकल लिख लिए और तुमने फॉर एग्जाम्पल 120 आर्टिकल रीड कर लिए, तो क्या ख्याल है? हो जाएगा ना? हो जाएगा. But it all requires your dedication and motivation. If you are dedicated, if you are spending time, if you are giving time to your subject, inshallah you can do it. So how many hours are allotted to this paper? पेपर तो 2 घंटे का होगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस तो हमें 100 आवर्स करें, हम जितनी करें. ठीक है, 2 hours तो हो जाएगा, lengthy थोड़ा ज़्यादा है, written से. क्लिक 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 क्लिक. सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, 2 जगह तुमने लिखना है एक्चुअली, बल्कि 3 जगह लिखना है. वो प्रेसी यहाँ सामने नहीं आई, प्रेसी भी है. प्रेसी बोले तो समरी राइटिंग. 3 चीज़ें तुमने लिखनी है. 1 इज़ द लेटर, द अदर इज़ योर पैराग्राफ बेस्ड ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हिच यू विल डू, एंड द थर्ड पार्ट इज प्रेसी. जो टेक्स्ट दिया होगा उसी को पढ़ोगे और उसी की 8 पॉइंट्स निकालोगे. 8 पॉइंट निकालने के बाद उन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पर यू विल बी राइटिंग द प्रेसी. ये आसान है, इंशाल्लाह हो जाएगा. Since it is based on कंप्यूटर बेस्ड है, तो अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस होगी तो और ही अच्छा है, ताकि वहाँ पर तुम जो है ना टाइपिंग में पता चले OPQ ना ढूंढ रहे हो ना. तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट. So we'll be writing on a computer like कंप्यूटर, ये वहाँ पर एक यानी सॉफ्टवेयर खुला होगा जिस पर जो है ना तुम्हें इसी तरह का लैपटॉप दिया जाएगा या कंप्यूटर दिया जाएगा, उस पर करना है. और कई दफ़ा उसके मसाइल भी होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मकसद है हाँ, विद दैट यू शुड बी ऑल अलाइंड विद द कीबोर्ड. कीबोर्ड के साथ तुम्हारी जो है ना अटैचमेंट होनी चाहिए. इट मीन्स कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करो, तो मैं सजेस्ट करूँगा अच्छा है. या सिर्फ कोई राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे कंटेंट की, तो हैंड रिटन कर सकते हो, बट कंप्यूटर के साथ आपका कनेक्शन, टाइपिंग स्लो है ना, तो विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह यू कैन डू इट. और बहुत ज़्यादा तो क्लिक 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 की वजह से जल्दी हो जाते हैं. तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा पेपर से पहले कि आपने उनको तो पहले निपटा देना, फिर टाइपिंग का काम करना है. ठीक है, फिश बोन या एफिनिटी मैं अलग से बता देता हूँ आपको.
कि फिशबोन या एफिनिटी डायग्राम आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट है, हेलो यार ये क्या, ओके हेलो हेलो हेलो, फॉर राइटिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ गए हो? योर प्लानिंग स्टेज which is based on two things. One is fishbone, the other is affinity. Option होता है, ठीक है, और है, और either you will go for fishbone which is based on cause and effect, or you will go for affinity which is based on topic and subtopics, right? So you have the choice, and you will choose any one, and it is for 10 marks. Okay? The second part of it is actually paragraph writing based on the same brainstorming, that is of 20 marks. Okay? Then you have letter writing, which is for letter, email और मेमो और रिपोर्ट. वो अलग बात है, हम आपको बता देंगे क्या चीज़ नहीं आती. मेमोरेंडम, मेमो इज इंटर ऑफिस मेमोरेंडम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन. ओके, वी यूज मेमोरेंडम. आजकल तो मेमोरेंडम भी व्हाट्सएप पे ही होता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए होते हैं और उसी पे होता है, बट मेमोरेंडम हैज इट्स ओन फॉर्मेट. देन वी हैव ईमेल, देन लेटर एंड रिपोर्ट. यूजुअली एग्जाम में मेमो या लेटर ही आ रहे होते हैं, कभी मेमो कभी लेटर, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर वी हैव लेटर, ईमेल, मेमोरेंडम एंड रिपोर्ट, एंड इट विल बी ऑफ 20 marks. And the third part we have is the reading section. Reading section or speed reading is also of 10 marks. And your Prezi and your choosing of selecting key points for the text will be for 20 marks. Okay, and then you have the vocabulary for 20 marks. So हो गए. So this is how समझ में आ गई. अगर हम broad picture देखें तो we have got reading section, we have got the writing section, we have got the business writing section, and we have vocabulary. ठीक है, तो रीडिंग के अब तो वाजे हो गया होगा. रीडिंग के अंदर वी हैव द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग के अंदर वी हैव स्पीड रीडिंग, ओके, एंड रीडिंग के अंदर वी हैव प्रेसी राइटिंग. नींद आ रही है. In the reading we have Prezi writing, summary writing. Not in writing. In the reading section, we have to read the text, we have to respond to the questions and MCQs, we have to write a Prezi, we have to write key points from the text. Total marks 30. ये देखो ना, 20 and plus 10 कितने हो गए? 30 marks for reading section. And writing again कितने के? Writing के कितने हो गए? राइटिंग के भी हो गए 30. 10 फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 20 फॉर योर राइटिंग. ठीक है, एंड देन वोकैबुलरी पार्ट अगेन हाउ मेनी मार्क्स? 20. एंड देन यू हैव वोकैबुलरी पार्ट दैट इज ऑफ 20. और बिजनेस लेटर्स, मेमोरेंडम, ईमेल कितने का? 20. ठीक है, तो ये 4 मेन हेड्स हो गए. सर इसमें ज़्यादा हमारे काम का क्या है? लाइक जो हमें आगे काम भी आए, एंड यू शुड प्रैक्टिस, दैट इज योर ईमेल राइटिंग. तुम कल को फर्म में जाओगे, यू हैव टू राइट ईमेल्स एवरी डे, यू हैव टू राइट लेटर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, यू हैव टू राइट रिपोर्ट्स.
तो रिपोर्टिंग का काम जितना ज़्यादा कर सकते हो वो बिजनेस BWCS बोले तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन दैट इज इन अ बिजनेस सिचुएशन. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ईमेल्स, प्रैक्टिस लेटर्स, और बहुत बड़ी आजकल नहीं, आजकल तो बहुत स्पेसिफिक, एक लाइन, वन लाइनर ईमेल, टू लाइनर ईमेल, तो वी हैव टू प्रैक्टिस. लेकिन उसकी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए. उसके अंदर सेपरेट अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे मैंने कहा पर्सुएसिव है, सेल्स प्रमोशन है, ठीक है, बैड न्यूज़ है, पॉजिटिव मैसेज है, रूटीन मैसेजेस है. तो ये हम सारे इंशाल्लाह चीज़ें करेंगे. तो अभी तो मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर दिखाया था बुक का, जो मैं उसमें से इधर उधर निकल गया. उस पर जाए या नहीं जाए? तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो यार? डर तो नहीं रहे? समझ में आ गया? जी जी. Can you please tell the criteria for exemption can you apply? यार ये थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली. या सर हुदैद से तुम पूछ लेना, या मैनेजमेंट से पूछ लो. ये लोग काउंसलर विल गाइड यू अबाउट इट. ठीक है. I want to ask for the Agan board. It is confirmed to be granted as an exemption. Blank. You can check it out. Okay. So the unit number 1 is about planning and deciding about the audience, deciding about the purpose. Okay. And for example, writing to the new client style is different, writing to the old client style is different, and we have to identify it by reading the direction given by the examiner. ठीक है. तो न्यू क्लाइंट के साथ हम ज़रा फॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होते. अब फॉर एग्जांपल आज मेरी और तुम्हारी क्लास के स्टाइल थोड़ा सा बाहर अनफॉर्मेलिटी के लेवल पे है. मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल क्लासेस नहीं लेता, लेकिन आने वाले दिनों में 10 दिन के बाद हमारा स्टाइल विल बी ऑल या काफ़ी सारा विल बी डिफरेंट, क्योंकि एक हमारी रेपो बिल्ड हो जाती है और आपस में हमारा इंटरेक्शन हो जाता है. सो पीपल दे लर्न अबाउट ईच अदर. सो द लैंग्वेज, द स्टाइल विल बी डिफरेंट. ओल्ड क्लाइंट के साथ आपका स्टाइल डिफरेंट होगा. वहाँ कह रहे हो डियर मिस्टर नवीद, यहाँ कह रहे हो डियर गनी. ठीक है जी. Bullet points, Muhammad Hamza Owais. Content you have to decide, okay, and then what message, what type, structure, volume, relevance. Somewhere you have to write only one paragraph is enough. Somewhere you have to write 3 paragraphs, okay. Order of importance पे हम जाएंगे, order of chronology पे जाएंगे, complexity पे जाएंगे, cause पर जाएंगे, what will be the style, what will be the tone, approach, mood, personal, okay, and so on. तो ये सारा जो है हम प्लानिंग स्टेज में बहुत सारी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना होता है. देन वी हैव फॉर्मेट ऑफ लेटर, सेकंड चैप्टर. लेटर, ईमेल वगैरह हम देखेंगे. ये देखो पूरा फॉर्मेट गिवन है. ठीक है. इस तरह से हम सारे फॉर्मेट हमें याद होगा और हम इसको जो है ना कर लेंगे. ये सारा क्लोजिंग वगैरह हम सारी देख लेंगे. योर सिंसियरली, सिग्नेचर, एक्सेट्रा. ओके. टाइप्स ऑफ लेटर्स आ जाएंगे. जैसे मैं बार बार बोल रहा था परसुएसिव लेटर, सो इट इज़ ऑन द स्क्रीन. परसुएसिव लेटर है. ठीक है. तो किस तरह से किसी को कन्विंस करते हैं. अगर मैं एक चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, द लैंग्वेज एंड द टोन विल बी डिफरेंट. एंड अगर मैं एक चीज़ नहीं बेचना चाह रहा, माई स्टाइल विल बी डिफरेंट. तो ये चीज़ है. लेटर ऑफ इंक्वायरी, हाउ टू इंक्वायर. ठीक है. कैसे किसी को सवाल करते हैं, किसी से कोई बात पूछनी हो तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी. पहला पैराग्राफ कैसा होगा, सेकंड कैसा होगा, थर्ड कैसा होगा. फॉलो अप करना है तो व्हाट इज द स्टाइल एंड सो ऑन. कवरिंग लेटर. ओके. एप्लीकेशन लेटर. अब तुम कहोगे एप्लीकेशन लेटर क्या होता है. हमने एप्लीकेशन अलग पढ़ी है, लेटर अलग पढ़ा है. एक्चुअली एप्लीकेशन कुछ होता ही नहीं है, बस लेटर ही होता है. ठीक है. सर्कुलर्स. तो ये हम इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो है वो तफसील से करेंगे. ठीक है. ये चैप्टर तो हमने कर लिया, डिस्कस किया काफ़ी तफसील से. This is the writing part. कि आर्ग्यूमेंट कैसे करना है, हाउ टू कन्विंस योर रीडर. अगर तुम जहन में सोचो कि इन योर पर्सनल लाइफ हाउ डू वी आर्ग्यू. वैलिड फैक्टर्स, रेफरेंसेस, रीजंस, एग्जांपल्स. ठीक है ना. अगर आज शादी में जाना है and I want to wear this coat and my mother wants me for example to wear casual. Okay, so we try to convince them, mama आज वलीमा है,
वलीमे में कोट पहनना ज़रूरी होगा, ठीक है। शूज़ पहने, ये पहने, वो कहेंगे कि भाई बारिश हो रही है ये नहीं पहनो, तुम कहोगे नहीं इसके बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता। सो वी डू कन्विंस पीपल एवरी डे, ठीक है। किसी ने तुम्हें सीए के लिए कन्विंस किया या तुमने किसी को सीए करने के लिए कन्विंस किया, सो वी डू कन्विंस। तो उसकी स्ट्रैटेजीज है। फिर ये देख रहे हो ये कुछ कटा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ चेंज हुआ हुआ है, ये इस तरह से हम एडिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। वील राइट एंड देन वील रिव्यू एंड वील एडिट एंड वील इम्प्रूव, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ट्रांजिशनल मार्कर्स यूज़ हुए, ये बहुत अहम होता है। मोर ओवर, हाउ एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू वगैरह वगैरह का इस्तेमाल इन योर राइटिंग एंड यू विल बी गेटिंग मार्क्स। कंसाइज भी करनी है, स्पेसिफिक करना है, लेकिन वर्ड काउंट गिवन है। जो प्रेसी है आपकी, बल्कि वो बात रह गई, जो प्रेसी है दैट इज ऑफ 100 वर्ड्स। जो समरी राइटिंग तुम्हें एग्जाम में करनी है दैट इज ऑफ 100 वर्ड्स, और जो तुम लेटर लिखोगे उसके लिए कोई वर्ड काउंट नहीं होता, लेकिन वो भी 100 to 150 हो ही जाता है। और जो आपका ऐसे है उसका वर्ड काउंट 250 वर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये है कि इस तरह, और ये टेक्स्ट विल बी गिवन एंड वी हैव टू प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज़ देयर, उससे पूरी तरीके हैं स्पीड रीडिंग वगैरह के, और इस तरह से जो है ऑप्शंस होते हैं एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। यू हैव रेड दिस टेक्स्ट फॉर एग्जांपल एंड आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट यू विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन, ठीक है। मैं अलग से तो नहीं प्रोवाइड करता हूँ, वो तो यहाँ बुक के अंदर टेक्स्ट में मौजूद है। प्रैक्टिस मटेरियल ये देख रहे हो 6.15, बहुत सारे टेक्स्ट गिवन है एंड क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन, तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना काफ़ी है। और एक क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको बताया था, वो हम आपको दे देंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट अगर एक ग्रुप बना दे व्हाट्सएप पर, या मैं बना के भेज दूंगा एक लिंक आपके उस पर, तो वो इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, तो उस पर हम लोग चैट भी कर लेंगे और आप लोग अपना होमवर्क भी भेज देंगे। और मैं क्लास में भी आपसे जो काम करवाता हूँ, क्लास में भी आप लोग पैराग्राफ राइटिंग वगैरह कर रहे होंगे या लेटर ईमेल लिख रहे होंगे, तो मैं आपको कहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, तो इंग्लिश का एक पर्सनल ग्रुप हो जाएगा और मेन ग्रुप हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इससे भी हमारा इंशाल्लाह कम्युनिकेशन विल बी ईजी एंड प्रैक्टिस विल बी ईजी। जी जी मोहम्मद हमजा ओवैस, जैसे मैंने कहा दैट पैराग्राफ राइटिंग, उसको तुम ऐसे बोल दो, ऐसे ऐसे राइटिंग एक्चुअली, right? So for example 6.18, this text is given and you will read it, comprehend it, understand it, and then you have some questions given. इसका टाइटल भी आपने देना होता है, ठीक है, एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस आर गिवन। सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, तुमने जो अब तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किए थे उसके रिस्पॉन्सेज तुम ज़्यादा आसानी से ढूंढ लेते थे। यहाँ पर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज आर यूजुअली बेस्ड ऑन एनालिटिकल स्किल, ठीक है, थोड़ा सा इवेल्युएट करके और थोड़े से हाई लेवल पर देने होते हैं। लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक इफ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं तो इसको 1 मंथ का कोर्स कहता हूँ, तो आपके पास तो 2 महीने हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, राइट। यस, आज हम पढ़ना शुरू करें या काफ़ी है? इनफ? कोई सवाल जितने हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पूछने हैं पूछ लो, ताकि थोड़ी सी पिक्चर शुड बी क्लियर द व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कि कौन सा सवाल कितने मार्क्स का होगा? अच्छा सवाल है, लेकिन ये सबके सामने व्हाट्सएप खोलना, so hello. Okay guys, so assalamu alaikum. You are seeing the screen here. So for example, you have a writing part. In writing you have fishbone or affinity for 10 marks. Okay, and the same question part B is of paragraph writing, it is of 20 marks. Done? Then you have question number 2, or another question you can say, that is of letter or memo or report, okay, or email, that is for 20 marks. Okay, and then for pressy writing or speed reading you have 10 marks, and you have
Actually, they are MCQ based questions based on the text. Is it precise writing or is it It's प्रेसी. ये बोलने में ये ई जो है ना, ये फ्रेंच वाला है, ये वो हमारा वाला ई नहीं है. और ये जो है इसका एस भी ऐसे होता है. तो इट्स कॉल्ड प्रेसी. इसकी प्रोनाउंसिएशन तुम गूगल पे चेक कर लेना. प्रेसी राइटिंग या समरी राइटिंग यू कैन से. स्पीड रीडिंग which is based on time bound, so you have to read that paragraph which is, for example, 2 minutes 3 minutes time you have, so you just have to go through it and respond to the questions. Okay, so 10 MCQs for 20 marks. MCQs will be given, and then you have the vocabulary part, idiom, synonym, antonym and all. तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि तमाम वोकेबुलरी इससे बाहर से नहीं आता, इसी में से आता है. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट. तो ये अब क्लियर हो गया. सो ये 5 नहीं है, एक्चुअली दीज आर 4 क्वेश्चंस. Question 1 has 2 parts. One is the brainstorming part for the writing, and the other is paragraph writing or essay writing, you can say. That is for 250 words. Sir, what type of topics are comes in mostly in the paragraph writing? They are for paragraph writing. They are usually argumentative writing, current affairs, education, IT, online, tech, AI. So inshallah we'll give you those topics as well. वो टॉपिक भी मिल जाएंगे हमारे पास. पास पेपर के जो बच्चों की फीडबैक आती है उससे भी हमने एक पूल बनाया होता है, वो भी आपको दे देंगे. जो क्वेश्चन आते हैं आपसे भी इंशाल्लाह जब आप पेपर देकर आओगे तो आप लोग बताओगे हमने ये क्वेश्चन आए थे इस तरह के, तो उससे भी एक पूल बनता रहता है. राइट, बिकॉज सिंस इट्स अ पूल एट आई कैप, और उसी पूल में से ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं. पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास सर टोल्ड दैट द क्वेश्चन वेरीज टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट. Definitely. For example, 10 students are giving the paper, 10 will have different questions. Questions will come from the pool, right? वो एक जैसे ही आपने क्लिक किया वो पूल में से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ आ गए. हर बच्चे का क्वेश्चन डिफरेंट होगा, टेक्स्ट रीडिंग टेक्स्ट डिफरेंट होगा, वोकेबुलरी सिनोनिम. कोई आके बताता है कि मेरा ज़्यादा इडियम्स आए थे, कोई आके बताता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे, कोई कहता है वोकेबुलरी बहुत कम आई थी, कोई कहता है बहुत आसान आई थी, कोई कहता है बहुत मुश्किल आई. तो हर बंदे का अलग सिनेरियो. कोई किसी को रिपोर्ट आ रही है, किसी को ईमेल आ रहा है, किसी को लेटर आ रहा है. हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन बस इट्स द फॉर्मेट. So everybody will get a different paper. चीटिंग का तो चांस ही नहीं है जी. ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं भाई? अब्दुल रहमान, व्हाट 50? यस, पासिंग मार्क्स बस ठीक है जी. ग्रुप पे सारी चीज़ें आ जाएगी, डोंट वरी. या एनीथिंग एल्स? 100 words based on the text given. Sorry? No, not less than 100 words. 100 word का मतलब है कि आपको 100 से ऊपर वो टाइप करने की गुंजाइश भी नहीं देगा. यानी you cannot write 101 word. So 100 word if they have allowed, तो वो उस बॉक्स में उतने की स्पेस है, उससे ज़्यादा you cannot write. 250 words जैसे you cannot write more, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते. Sorry? तो फिर उसको तुम्हें रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, बीच में से कोई सेंटेंस को एडिट करना पड़ेगा. बाउंड होता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर? इंशाल्लाह वी स्टार्ट चैप्टर वाइज. बट जो मैंने आपसे एक बात अलग कह दी है, जो यहाँ पर चलेगी थ्योरी दैट इज सेपरेट. बट अदर देन दिस 2 चीज़ों पर तुमने मुस्तकिल काम, बल्कि 3 चीज़ें बोल दूँ. वोकेबुलरी तुमने खुद स्टार्ट कर देनी. यूनिट नंबर 4 वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. मैं आपको बता दूंगा कि बस इसको करते रहो, और तुम मुझे बताओगे इंशाल्लाह 1 महीने के बाद सर वोकेबुलरी मेरी हो गई. ठीक है, 2 पेज 3 पेज तुम ऐसे वोकेबुलरी को गो थ्रू करोगे. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट एंड यू कैन डू इट. हाँ, जो नहीं आएगा उसको तो मीनिंग चेक कर लोगे. आजकल तो डिक्शनरी का भी ज़माना नहीं है, मोबाइल से ऑटो चेक करोगे, 1 सेकंड लगेगा. तो साथ साथ उस वोकेबुलरी को गो थ्रू करते रहोगे. रीडिंग तो कम से कम लीस्ट, जो गया गुजरा नकम्मा स्टूडेंट होगा उसने 1 आर्टिकल एवरी डे पढ़ना होगा, और जो अच्छा बच्चा होगा वो 10 आर्टिकल एवरी डे भी पढ़ लेगा. ठीक है, 1 आर्टिकल एवरी डे एटलीस्ट बेयर मिनिमम, कम से कम. वरना तुम बोलो कि मैंने फेल होना है, और बच्चे फेल होते हैं. BWCS में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं. ये बात तो पहले नहीं बताई थी, और बतानी थी या नहीं बतानी थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ.
बहुत ज़्यादा फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्टैटिस्टिक्स को या मैथ्स को या अकाउंट्स को या मुख्तलिफ सब्जेक्ट को दे रहे होते हैं, और वो ये सोच लेते हैं कि मैंने तो कैम्ब्रिज किया है, मैं तो ओ लेवल करके आया हूँ, इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, और वही फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अहम है। देखो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें लेटर का फॉर्मेट नहीं आता, यू आर गोइंग टू लूज 20 मार्क्स। ठीक है, तुम्हें 4 नंबर 5 नंबर मिल गए कंटेंट के, लेकिन फॉर्मेट के मार्क्स कट गए। तो यहाँ फॉर्मेट बहुत अहम है। तो कुछ चीज़ें, जैसे किसी ने आइल्स दिया, कभी आइल्स में क्या है, कुछ सिस्टम्स हैं, अगर वो सिस्टम आते हैं ना तो थोड़ी सी वीकनेस होती है, वो चल जाता है। यहाँ यही है कि अगर आपको ये फॉर्मेट सारे आ गए तो यू कैन डू इट। ठीक है, और लैंग्वेज थोड़ी सी कम भी हुई चलेगा, लेकिन अगर फॉर्मेट वगैरह नहीं आते, लैंग्वेज तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो तुम फंस जाओगे, तुम्हें एफिनिटी नहीं आती या वो फिश बोन डायग्राम। तो इसका एक अपना सेट पैटर्न है, वी हैव टू फॉलो दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, कॉम्प्रिहेंड इट, एंड विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह यू कैन डू इट। तो थोड़ी सी टेक्निक है, टाइम देना जरूरी है। तुम्हें बता रहा था 3 चीज़ें जो एवरी डे करनी है, हमारी क्लास हो ना हो, मैं हूँ ना हूँ, ठीक है, तुमने वो करना ही करना है। वन इज लर्निंग वोकैबुलरी, वो एंटोनिम है, सिनोनिम्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, और सारी चीज़ें तुमने देख ली आज। सेकेंडली, तुमने एक आर्टिकल तो रीड करना है। अच्छा, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, एक आर्टिकल जो तुमने रीड किया, उस आर्टिकल को पढ़ लिया, उसको बंद कर दो, अब तुम उसी टॉपिक पर खुद आर्टिकल लिखो। इसराइल ईरान वॉर, तुमने एक आर्टिकल पढ़ लिया, उस आर्टिकल को रख दो, अब उसी टॉपिक पर तुम एक पैराग्राफ लिख लो। क्या है, लिख सकते हो ना। और जो और अच्छा बच्चा होगा वो 5 आर्टिकल पढ़ेगा, मे बी ऑन द सेम टॉपिक। 5 आर्टिकल जब पढ़ लिए, एक अच्छा खासा पूल आ गया, उन टॉपिक्स को बंद कर दिया, एंड राइट योरसेल्फ। ठीक है, तो तुम देखोगे दिनों में 30 दिन में 30 आर्टिकल बनते हैं जो तुम लिखोगे। ठीक है, और 60 डेज में 60 आर्टिकल बन जाएंगे। और जो ज़्यादा टाइम देगा, जो अपनी नींद को भी ख़राब करेगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करेगा, तो हो सकता है कि वो एक दिन में 2 आर्टिकल और 3 आर्टिकल भी लिख ले। ठीक है, और बच्चे भेजते हैं मुझे रिव्यू करवाते हुए, मैं कहता हूँ यार इतने सारे भेज रहे हो, तो मैं 1-2 में तुम्हें फीडबैक दे देता हूँ। तो इस तरह से इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग फीडबैक एज वेल, एंड यू विल बी राइटिंग। ये तो वो चीज़ें जो तुमने करनी है, रीडिंग, राइटिंग एंड वोकैबुलरी मेमोराइजिंग। बाकी इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होती रहेंगी, और मेरा कोर्स भी 1.5 मंथ में कवर होगा, और इंशाल्लाह 15-20 दिन तुम्हें पहले ही छोड़ दूँगा, तुम वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे और हो जाएगा। जी, बहुत ज़रूरी। फॉर्मेट तो मेरी क्लासेस से सीख लोगे, ठीक है, और जो इम्प्रूवमेंट है रीडिंग की, राइटिंग की, वो तुम प्रैक्टिस से करोगे। सही है, क्लास लेना ज़रूरी, चाहे वो ऑनलाइन लो, चाहे फेस टू फेस लो। और बाकी है कि जो फेस टू फेस आओगे तो ज़रा अच्छा हो जाता है, सवाल वगैरह इजी हो जाते हैं। बाकी ऑनलाइन वालों को भी हम कोशिश करते हैं कि कवर करते रहें। वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, एजुकेशन, जो मेन थीम्स हैं वो एजुकेशन, आईटी, करंट अफेयर्स और हेल्थ, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। वो आपको हमारे हुमेरा लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट इज बेस्ड ऑन रीडिंग, एनेक्जर्स से पहले। एंड सर क्लास रोज होगी या वीक में 2-3 दफ़ा? शायद वीक में 2 ही दफ़ा होगी। ठीक है, और अभी जुलाई में शायद मैं ज़्यादा भी लगा दूँ, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। मैंने बताया था सुबह में आया हुआ प्रिंसिपल, तो जुलाई में चूँकि थोड़ा टाइम होगा तो आई माइट हैव मोर क्लासेस। आर्टिकल्स वाला चैप्टर बता दिया, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे मेरे ख्याल में तो ऑफ ही होगा। बाकी ये एडमिन वाले आपको सारा सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। जब क्लास लग जाएगी, इधर सीए के अंदर ये है कि क्लास लग गई तो हमें आना होता है, पढ़ना होता है, और नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है। अब एक नियत करो, एक ठान लो, ठीक है, डेडिकेशन के साथ। आंधी आए तूफान आए, हमने तो पढ़ना। और माशाल्लाह आज तुम लोगों ने उसकी मिसाल कायम की है कि बारिश हो रही है लेकिन जो है वैसे नहीं हो रही है ना, आधे हो तो वेरी गुड। यही डेडिकेशन चाहिए टिल द एंड इंशाल्लाह, यू कैन डू इट। ठीक है, सारे पेपर पास होंगे, सबको टाइम देना है। ठीक है, जैसे होता है ना किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ जितनी डिशेज होते हैं हम कोशिश करते हैं कि सारी डिश को टच करना, तो यही है इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी मेरा स्टाइल आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा मासूम तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, चिल सीन होता है। और यही मैं अपने बच्चों को मैसेज भी देता हूँ कि बी काइंड टू अदर्स, रिलैक्स करो। हल्की सी गाड़ी को टच हो जाती है, तुम गाड़ी से उतर के कहते हो कि बस मैं पता नहीं क्या कर दूँगा। रिलैक्स, थोड़ी सी लग गई, खैर है, माफ़ किया बाबा, जाओ। ठीक है, तो जब माफ़ करोगे ना, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ करेगा, और दुनिया में भी तुम पास हो जाओगे और क़यामत में भी पास हो जाओगे। और सीए के अंदर पास होने के लिए यही तरीका है, माफ़ करो, आगे बढ़ो। यू डोंट हैव टाइम टू engage in disputes and these quarrels, move on इंशाल्लाह। आज जुमा है, नमाज ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। ये दीन की बातें भी हम थोड़ी थोड़ी आपको सिखाते रहेंगे।
जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, दुरूशी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अल्लाह के साथ तो सीए वाले ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और अल्लाह से ही मांगते हैं, असल में अल्लाह नहीं करना है। अम्मा की दुआ, ठीक है, अम्मा अब्बा के साथ कनेक्शन, अम्मा से लड़ाई नहीं करनी, अम्मा की खिदमत करनी है। बहुत ज़्यादा तुम पढ़ाई कर रहे हो, अम्मा ने भेज दिया तो चले जाओ, अम्मा की खिदमत करनी है, अम्मा अब्बा, ठीक है ना। और फिर उनकी दुआएं ऑटोमेटिक मिलेंगी, तुम्हारा सीए खुद ब खुद हो जाएगा। मुन्ना भाई ऐसा नहीं होता क्या? हैरान होकर देख, कह रहा है अजीब सी बात करें। तो जहाँ हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू हेल्प अस, वहीं पर हमारा लक भी इंशाल्लाह बनेगा, हमारी किस्मत भी डेवलप होगी। जो दुनिया में अम्मा अब्बा के साथ हुस्न सलूक करता है, अल्लाह ताला रिस्क की बारिश कर देते हैं। जो दुनिया में अम्मा अब्बा के साथ बदतमीजी करता है, ऑटोमेटिक उसका रिस्क तंग हो जाता है, ठीक है, तो आगे फंस जाता है। तो अम्मा अब्बा के साथ भी बनानी है और अल्लाह के साथ भी बनानी है, उसके बगैर जाना ही कहाँ है, ठीक है। तो कनेक्टिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुस्तफ़ा कह रहा है ये मौलाना साहब बयान शुरू कर देंगे, इससे पहले कह रहा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इजाज़त दें, जुमे की तैयारी करते हैं, ठीक है भाई।